Hello student, in our today's topic, we are going to study transmission of nerve impulse. In our previous lecture, we have already studied about the conduction of impulse within a neuron. In this one, we will study about how the impulse is transmitted from one neuron to the another neuron, that is in between the neurons. But before moving to the topic, first of all we have to see what is synapse. Basically, this synapse is nothing but a gap between the two neurons. This is the first neuron and this is the second neuron. In between these two, there is a gap. This gap is called as synapse. Now, this synapse can be of two types. First is electrical and the second is chemical. Before moving to electrical and chemical, let's study this one first. That is the membranes over here. This is the axon termini and this is the dendrite of the second neuron. First neuron, second neuron. And the gap, as I told you, this gap is called a synapse. The membrane present over here, that is before the synapse, there is a membrane over the axon. This is called as presynaptic, as it is present before the synapse, and after the synapse there is another membrane over the dendrite region. It is called as postsynaptic. Okay, so what happens in electrical and chemical? Let's see. In case of electrical, the presynaptic and the postsynaptic membrane are in close proximity. So I am writing here in short, presynaptic membrane and postsynaptic membrane are in close proximity. And in this case, both the membrane, that is pre and post, are distant from each other. Pre and post synaptic membrane are distant. In this case, that is in electrical synapse, the rate of transmission is faster and it is rarely found in our body. हमारे बॉडी में बहुत ही कम पाया जाता है, बट दिस केमिकल साइनेप्स हमारे बॉडी में ज्यादातर पाए जाते हैं. और एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, दिस साइनेप्स इज or this process is a slow process. Okay, and in this chemical synapse there is the involvement of neurotransmitter, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है. यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर का रोल आ जाता है. सो सबसे पहले आप देखते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है. So, neurotransmitter. These are nothing but chemical substances of low molecular weight. इन लोग का मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है और ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. पहला एक्साइटेटरी और दूसरा हो गया इनहिबिटरी.
तो जैसा कि नाम है एक्साइटेटरी, तो ये क्या करेगा, ये एक्साइट करेगा, और इनहिबिटरी ये इनहिबिट करेगा। मतलब ये ट्रांसमिशन को क्या करेगा, तो पास करने में हेल्प करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा, और ये इनहिबिटरी क्या करेगा, उसको रोकेगा। सो यहां पे हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन, और यहां पे इट इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये इंफॉर्मेशन के फ्लो को बढ़ाता है और ये इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकता है। ओके, नेक्स्ट इफ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ एक्साइटेटरी, देन यू हैव ऑलरेडी केम इन और केम अक्रॉस acetylcholine, then norepinephrine, another example, suppose you can say serotonin, etc. But in case of inhibitory, examples GABA, that is gamma aminobutyric acid, glycine, etc. Okay, so we have seen or we have studied about the synapse, types of synapse, neurotransmitters which are involved in the transmission of nerve impulse. So let's see the mechanism, how the impulse is transmitted between the two neurons. So this is the axon termini, and this is the dendrite, and I told you this is the presynaptic knob. Let's do the black ink first. Or membrane, and this is the postsynaptic. So here we will discuss about both the one, or that is both things, that is excitatory as well as inhibitory. So first look at the excitatory one. So what happens here first? So when conduction was occurring, जब कंडक्शन हो रहा था, तो कंडक्शन होते होते क्या हुआ, जो इंपल्स है अब एक्सोन टर्मिनी तक पहुंच चुका है। ओके, अब जो ये इंपल्स देखिए यहाँ पे, ये इंपल्स अब कहां तक पहुंच गया, एक्सोन टर्मिनी तक। मतलब यहाँ पे किसका इन्फ्लक्स हो रहा था, सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन अंदर की तरफ जा रहा है, और क्या होता है, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाता है। एंड व्हाट हैपेंस ओवर हियर, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज सिंथेसिस। ये रहा न्यूरोट्रांसमीटर, these neurotransmitters are synthesized and are packed in a vesicle like structure with the help of enzyme. अब ये वेसिकल के फॉर्म में पैक्ड हो गया। ओके, सो आई विल राइट इट हियर, न्यूरोट्रांसमीटर। Okay, these are packed in a form of vesicle. Now, along with the sodium ion, there will be an influx of calcium ion. मतलब सोडियम के साथ साथ यहां पे कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है। ओके, और ये कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम अंदर जाने के बाद बाइंड कर जाएगा
किसके साथ बाइंड करेगा? तो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। दिस कैल्शियम बाइंड्स विथ neurotransmitter, and after binding with this neurotransmitter it will start mobilizing the neurotransmitter। अब क्या करेगा? ये इसको मोबिलाइज करेगा। मोबिलाइज करने का मतलब है मोबिलाइज करके यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर की तरफ निकालेगा। So this neurotransmitter will come out in the synapse। अभी देखिए साइनैप्स में आ गया, और साइनैप्स में आने के बाद यहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। देयर आर सम रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यू कैन से पोस्ट साइनेप्टिक। सो दीज आर द रिसेप्टर्स which are present over here. So what happens when these neurotransmitters are released? It will get bond or bind with this one, the receptors of the postsynaptic membrane, and what happens, जैसे ही यहां पे ये इसके साथ बाइंड करता है, देन ये अभी क्या था? अभी पोलराइज्ड कंडीशन में था। पोलराइज्ड कंडीशन मतलब अंदर की तरफ माइनस 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 था और बाहर में प्लस 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 था। यहां भी माइनस 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 और इधर प्लस प्लस प्लस। तो इस स्टेज को मैंने कहा था कि क्या कहा जाता है? पोलराइज्ड स्टेट। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड करता है तो क्या होता है? सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है। दैट इज इट विल ओपन अप। ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयन स्टार्ट हो जाएगा मूव करना, और यहां से बाहर क्या आ जाएगा? पोटेशियम आयन। आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास, पोटेशियम आयन विल गो आउट, ओके, इन द रेशियो 3:2। तो सिमिलरली हियर आल्सो द सोडियम आयन विल कम इन। सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो गया, और जैसे ही इनफ्लक्स होगा ये क्या हो जाएगा? डिपोलराइजेशन। सो जब डिपोलराइजेशन होता है तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अंदर में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा और बाहर नेगेटिविटी इंक्रीज होगा। यहां देखिए, सो यहां क्या हो जाएगा? प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 माइनस। So depolarization will start and it will proceed. The depolarization proceeds in this direction. In this direction. Okay? So why this is occurring? This is occurring because of the excitatory neurotransmitter. जैसा मैंने एग्जांपल बोला था एसिटाइल कोलाइन। सो कोई भी सिग्नल जो है वो इसी तरह से पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। हेल्प कौन कर रहा है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलाइन, एंड आई हैव गिवन सम एग्जांपल बिफोर आल्सो। ओके, so what happens first here? As the impulse reaches the axon termini, then what happens? Along with the sodium ion, calcium ion will get entered inside the axonic knob, and there will be a synthesis of neurotransmitter. Neurotransmitter will be packaged inside a vesicle-like structure, okay, which is mobilized by the calcium ion, and they are released in the synapse. That is the synaptic cleft. इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद कहां जाकर के अटैच हुआ? अटैच हुआ आपका ये रिसेप्टर्स के साथ। ये रिसेप्टर्स कहां पाया जा रहा है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा।
खुलने के बाद सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। और जो पोलराइज्ड कंडीशन था पहले, अब क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन मींस अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब जरा छोटा सा एक टॉपिक देख लेते हैं, हाउ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स विल इनहिबिट और प्ले इट्स रोल। ओके, कैसे वो इंफॉर्मेशन को रोकने में हेल्प करता है। So this will be as usual, ये as usual होगा, प्रीसाइनेप्टिक नॉब है। अभी पहले कंडीशन में क्या देखा कि इंफॉर्मेशन प्रोसीड कर रहा था, दूसरे में क्या देखेंगे कैसे इंफॉर्मेशन को रोका जा रहा है, मींस हाउ इट इज प्रोहिबिटेड और इनहिबिटेड। दिस इज द डेंड्राइट। Now, let's consider this as inhibited neurotransmitter. This is the synaptic cleft, as I told you. ये synaptic cleft है और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने क्या कहा था, तो ट्रांसमीटर्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ना कैल्शियम आयन आएगा सेम एज यूजुअल, किसके साथ आ रहा है, सोडियम आयन के साथ, और आने के बाद बाइंड कहां कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, मोबिलाइज कर रहा है। मोबिलाइज करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया। ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी। पहले केस में हमने क्या देखा था, एक्साइटेटरी। सो दिस आर द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर फर्स्ट, यहां पे क्या होता है, पोलराइज्ड स्टेट होता है, बाहर प्लस 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 प्लस, यहां पे माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस। सो ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव चार्ज है और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सोडियम का कम है। देन व्हाट हैपेंस when the neurotransmitters, that is inhibitory neurotransmitters, gets bind with the receptors, तो यहां पे क्या होता है, क्लोरीन का चैनल खुल जाता है। मतलब जैसे ये बाइंड करेगा, क्लोरीन आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ओके, यहां भी सेम, क्लोराइड बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है, तो जब क्लोरीन अंदर जाता है तो नेगेटिविटी क्या होगा, और इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या होता है, पोलराइज्ड स्टेट से हाइपर पोलराइज्ड स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाइपर पोलराइज्ड। जब हाइपर पोलराइज्ड हो गया तो फिर ये इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। ओके, और जो ट्रांसमिशन होता है फिर वो रुक जाता है। अंडरस्टूड। तो ये कैसे हो रहा है, अभी मैंने बताया, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड किया, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे किसका गेट खुल गया, क्लोरीन का। क्लोरीन बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिविटी इंक्रीज हो गया, तो पोलराइज से क्या हुआ, हाइपर पोलराइज्ड हो गया। नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट फॉर्म हो गया। ओके, सो इन दिस वे द इंफॉर्मेशन और इंपल्स इज इनहिबिटेड from moving or from transmitting, ट्रांसमिट करने से रोकता है। So this is how the impulses or nerve impulses transmitted from one neurons to the another neurons। इस लेक्चर में हमने दोनों कंडीशन का जिक्र किया, पहले एक्साइटेटरी का भी और
इनहिबिटरी का भी. And before that we have already studied that synapse क्या होता है, neurotransmitters क्या होते हैं. That's it. So here we have completed the transmission of nerve impulse. Thank you.